practicals for this semester 3. In the paper 1, have you written all the practicals? You have seen that there are the total 10 practicals are there. Just I'm sharing the screen. Okay. In that first experiment is based on the chemical kinetics to investigate the reaction between the K2H28 and Ki with equal initial concentration of the reactant. Second experiment, crystallization is there to crystallize the potassium iodide and to estimate its purity before and after the separation. To verify the Ostwald dilution law for the weak acid conductometrically, conductometer experiment is there. To determine the solubility and solubility product of the barium sulfate at room temperature conductometrically. To determine the dissociation of dissociation constant of the weak acid conductometrically. To determine the energy of activation of acid catalyzed reaction or acid catalyzed hydrolysis reaction of methyl acetate. It is again the chemical kinetics. Then say experiment number 7, identification of the inorganic compounds containing the two cations by the qualitative. Then to estimate the amount of the copper present in iodometrically, then the identification of the inorganic compounds containing the two cations by the qualitative analysis and estimation of the zinc present by complexometrically. ये दो आइडेंटिफिकेशन इनऑर्गेनिक के उन्हीं का एस्टिमेशन है. ये ऐसे 10 एक्सपेरिमेंट है. ओके, but I think so you have written all these experiment. Now we will see the experiment number 1 to investigate see here. Now the aim of this experiment is to investigate a reaction between the K2H28 and the Ki with equal initial concentration of the reactant. मतलब कि initially the concentration of the both the reactant is same. Here K2H28, that is a potassium thiosulfate. Okay, that potassium thiosulfate oxidizes Ki to liberate the iodine. Means K2H28 and the Ki when react together they will give you the iodine. अभी ये फिर से iodometric titration हुआ. जब liberation of the iodine है, this is called as the iodometric. The progress of the reaction is studied by titrating liberated I2 against a standard sodium thiosulfate solution using freshly prepared starch indicator at specific time intervals. The reaction is I2 plus Na2H2O3 की reaction है, तो आपको मिलने वाला Na2H4O6 plus twice Na. The specific reaction rate is determined graphically as well as by using the integrated rate equation. Also, the order of reaction is determined by the fractional change method by using the formula N is equal to 1 plus log T1 minus log T2 divided by log A2 minus log A1. When A1 represents where A1 represents volume at a time T1 for set 1 and A2 represents volume at time T2 for set 2. रिक्वायरमेंट से K2H28 का सॉल्यूशन चाहिए, Ki का सॉल्यूशन चाहिए, सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च इंडिकेटर चाहिए क्योंकि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है और आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन जब भी होता है तब वहां पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च इंडिकेटर यूज किया जाता है. क्रश आइस वाटर bath, then the glass stoppered bottle, pipette, conical flask, etc. अभी set 1 carry out the experiment set as follows. ऐसा सेट बनाना है. 50 ml 0.05 नॉर्मल K2H28 लेना है पहले बॉटल में, दूसरे बॉटल में 50 ml 0.05 नॉर्मल Ki लेना है. Keep both the bottle in the water bath to attain the room temperature for about 5 minutes. Then mix the solution carefully and note the time of the mixing as a 0 time. Do not remove the reaction mixture bottle from the water bath throughout the experiment. Fill the burette with by titrating 10 cm cube of mixture in 150 cm cube conical flask at intervals of the 5, 10, 15, 20. ब्यूरेट को फिलअप करना है सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन से और उसको टाइट्रेट करना है 10 cm क्यूब रिएक्शन मिक्सचर को 5, 10, 15, 20, 25, 30 मतलब 5 मिनट के इंटरवल से. ओके, एंड पॉइंट विल बी ब्लू टू कलरलेस. ओके, ऐसा ही सेम सेट 2 करना है जिसमें 0.05 नॉर्मल K2H28 25 ml लेना है, Ki 25 ml लेना है, 25 ml वाटर रहेगा एंड देन मिक्सअप करना है. सेम सेट 2 रहेगा. ओके, अभी टेबल 1 का अभी इनिशियल कैलकुलेशन करना है कॉन्सेंट्रेशन का A एंड B का. N1 is a normality of K2H28 है, वॉल्यूम ऑफ द K2H28 है. ओके, N2 is a normality of the K2H28 in the mixture and V2 is the volume of the reaction mixture in set 1.
अभी टोटल वॉल्यूम जो है 100 cm3 है, बराबर है। K2H2 का वॉल्यूम कितना है 50 है, बराबर है। अभी नॉर्मलिटी मिक्सचर में निकालना होगी तो कैसे निकालेंगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, राइट। N1 पता है 0.05 इंटू 50, टोटल वॉल्यूम पता है मगर उसका कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं, तो कैसे निकालेंगे, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस K2H2 इज नथिंग बट द 0.025 नॉर्मल। A is equal to V3, volume of the 0.02 normal into corresponding to the K2H2 in the 10 cm of the reaction mixture. अभी K2H2 is equal to NH2 Na2H2O3, बराबर है। N2V2 is equal to N3V3। अभी आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है किसका, Na2H2O3 का वॉल्यूम कितना लेंगे, जैसे कि आपने 10 cm3, बराबर है, K2H2 का सॉल्यूशन लिया, बराबर है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.025 का 10 cm3 लिया, और आपके पास Na2H2O3 का कॉन्सेंट्रेशन क्या 0.02, उससे अगर डिवाइड करेंगे तो आपकी A की वैल्यू कितनी आने वाली है 125। अगर आप सिमिलरली फॉर दिस Na वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू फॉर द Ki अगर निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा 125 आएगा, क्योंकि दोनों का भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, Ki का भी सेम है और K2H2 का भी है। तो पहले सेट के लिए A भी कितना आया 125, ओके। देन ऑब्जर्वेशन है वही जो अभी वहां पे प्रोसीजर में लिखा था कि सॉल्यूशन इन ब्यूरेट क्या है, फ्लास्क में क्या रहेगा। आपको 5-5 मिनट के बाद रीडिंग लेनी है, तो रीडिंग इस तरह से आएंगी, तो दैट इज x को a में से माइनस करने का, ओके, a माइनस एक्स आएगा, उसका रेसिप्रोकल लेने का 1/a माइनस एक्स, ओके। देन x अपॉन a माइनस एक्स, x की वैल्यू डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, तो उसका रेशियो लेने का, ओके। देन k इज इक्वल टू 1/t इंटू x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स। Then you can put all these values, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a माइनस x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपको k मिलेगा। देन यू कैन टेक द मीन, क्योंकि सारे 6 का क्या करने का, ऐड करने की, डिवाइड बाय 6 करने का, वो आपको मीन मिलेगा, ओके। अभी सेट 2 के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। अभी वो एग्जैक्ट हाफ है तो इसलिए 62.5 आने वाला है, कैलकुलेशन डिटेल में दिया है। देन ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर द सेकंड सेट। अभी सेकंड सेट के लिए जो रीडिंग है फिर से वही सेम चीजें करनी है, ओके। मीन लेना है, के की वैल्यू मिलेंगी, ओके। ग्राफ प्लॉट करना है, x अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है, आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, ओके, विद अ पॉजिटिव स्लोप, ओके, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सेट 2 के भी लिए भी सेम मिलेगा, ओके। और ये सेकेंड वाला ग्राफ बनाना है जिसमें x वर्सेस t का ग्राफ है। सेट 1 के लिए एक निकालना है, सेट 2 के लिए निकालना है, वहां पे आपको अलग अलग कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, x1 x2 एंड t1 t2 अलग मिलेंगे, ओके। यहाँ पे लेना है उस वैल्यूज को, फिर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेंगी, तो k1 k2 बाय ग्राफ बाय कैलकुलेशन, ओके। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम द ग्राफ यू कैन कंक्लूड दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इंडिकेट्स द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर। ये आपको ये करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अभी एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है क्रिस्टलाइजेशन है, ये वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट है। क्रिस्टलाइज द पोटेशियम आयोडाइड एंड एस्टिमेट द प्यूरिटी बिफोर एंड आफ्टर द सेपरेशन। द आयोडाइड्स ऑफ द अल्कली मेटल आर soluble in water. Solubility of the sodium iodide is that is 90 gram per dm at 20 degrees, and that of the potassium iodide is 81.3 gram per dm when heated. Then Ki3 decomposes into, KiO3 is nothing but a potassium iodide, okay. कैसे डिकम्पोज होगा, Ki plus oxygen. Crystallization of KiO3 from water is carried out very carefully. Solution is heated very slowly till the fumes start coming out. Water evaporates, but the salt remains undecomposed, okay. Then KiO3 sample containing about 10 to 20 milligram of NaCl, distilled water 0.1 molar that sodium thiosulfate solution, Ki solution, freshly prepared starch indicator, H2SO4, these all are requirement. In the part 1 crystallization of first of all crystallize करना है, आपको एक particular weight 2 to 2.5 gram KiO3 लेना है, okay, in the 5 to 7 cm hot distilled water, okay. उसको फिल्टर करना है, हॉट सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर के थ्रू, कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन द कोनिकल फ्लास्क, वॉश द फिल्टर पेपर विद द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर, कलेक्ट द वॉशिंग, allow the solution to cool, crystal of the KiO3 starts forming. When crystallization get completed, filter through a Buckner funnel using the suction pump, wash the crystals twice with the 1 cm3 of cold distilled water, collect the crystal and dry them in an electric oven at about 120 degrees centigrade for the 10 to 15 minutes. Transfer the dried crystal of the KiO3 to the
desiccate and store it. Then standardization of KO3 weigh accurately, आपको ये वे करके लेना है on a clean dry wash glass, transfer it to the clean beaker और उसमें पानी डिस्टिल वाटर ऐड करना है 10 to 20 cm cube, transfer the solution very carefully to the 100 cm cube standard measuring flask, dilute it up to the mark with the distilled water, prepare out 10 cm cube in the conical flask, उसमें 2 test of the KI डालना है, 2 test of the distilled water and 3 to 5 cm cube H2SO4, then titrate it against the 0.1 molar N2H2O3 solution from the burette. Then till a yellow colored solution forms, add 2 to 3 drops of the freshly prepared starch indicator and continue the titration. End point will be from blue to colorless. अब बाद में estimation है. Estimation of crystallized K3 weight 0.5 to 1 gram of the crystallized K3 on a clean dry wash glass. ट्रांसफर इट बीकर, फिर से वही प्रोसेस करनी है, वाटर डालना है, डिजोल्व करना है, उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालना है, डाइल्यूट करना है अप टू 100 cm क्यूब, पिपेट आउट करना है 10 cm क्यूब, फिर सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है. ओके, और वो जो रीडिंग आएगा उसे नोट करना है. अभी ऑब्जर्वेशन फॉर द पार्ट 1 क्रिस्टलाइजेशन ऑफ KO3 साले मतलब आपका जो है सप्लाइड आपको Na2SO3 किया रहेगा. ओके, KiO3 का सॉल्यूशन लिया है, बाकी सारी चीजें डाली है तो रीडिंग आने वाली 14.5 cm. सेकेंड सेट के लिए रीडिंग आने वाली 8.3 cm क्यूब. कैलकुलेशन पहले स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द सैंपल KiO3, तो स्टैंडर्डाइजेशन का रीडिंग आया है, उससे आप कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, फिर कितना KiO3 प्रेजेंट है ग्राम पर DM क्यूब, दैट वी विल फाइंड आउट. देन परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ द सैंपल, 1 gram of KiO3 corresponds to 100% and dot gram of the KiO3 corresponds to the how much. तो 1 ग्राम इतना 100 को आता है तो x ग्राम कितने को आएगा, तो कितना ग्राम आया है 31.0 ग्राम पर DM क्यूब आया, तो 31.03% आ गया, बराबर है. देन एस्टिमेशन ऑफ क्रिस्टलाइज्ड KiO3, उसका एस्टिमेशन करेंगे तो आपको दो अलग अलग चीजें मिलेंगे. देन परसेंटेज प्यूरिटी कैलकुलेट करनी है, ये एक्सपेरिमेंट again the very simple one. Then here result sample KiO3, crystallized KiO3. Then from the above result is it concluded that the percentage purity of crystallized KiO3 is more compared to that of the sample KiO3. Then experiment number 3A, verify the Ostwald dilution law for the weak acid conductometrically. अब ये conductometry theory में भी है, सेम यहाँ पे वही है. Ostwald dilution law states that ये आपको वाइवा के लिए आ सकता है. Constant temperature degree of dissociation of weak electrolyte is inversely proportional to the square root of its concentration. The mathematical form of law is represented Ka is equal to चाहिए alpha square C divided by 1 minus alpha. In this experiment, the conductance of the acidic solution is measured at a different concentration. Using the conductance of the solution, it is possible to calculate a specific conductance, equivalent conductance of the solution. It is possible to calculate a degree of dissociation alpha using the equation alpha is equal to lambda C upon lambda infinity. अभी लैम्बडा है इसे लैम्बडा प्रोनाउंस करते हैं. लैम्बडा इन्फिनिटी इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन एंड ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉम द कोलार्स लॉ. ये कोलार्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में हुआ है. द डिसोसिएशन कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओस्टवाल्ड लॉ. द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ K वेरीफाइज द ओस्टवाल्ड लॉ. अब रिक्वायरमेंट क्या है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी वाटर. कंडक्टिविटी वाटर मतलब प्योर वाटर रहता है. Okay, then standard measuring flask, beakers, pipettes, graduated pipette, then acetic acid solution 0.1 normal और KCl solution चाहिए. प्रोसीजर क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द सेल कांस्टेंट. सबसे पहले सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करना होता है. वॉश द कंडक्टिविटी सेल एंड टेक द बीकर which has the conductivity water, rinse both the cell and the beaker with the small quantity of the 0.1 normal KCl solution. Take about 50 to 60 cm cube supplied KCl solution in the rinsed beaker and dip the conductivity cell in it. So the platinum plate dipped in the solution completely. Connect the cell to the conductometer and determine the conductance of the KCl solution using this conductance. Determine the cell constant of the cell. अभी cell constant कैसे निकालते हैं, यहाँ पे दिया है. टेम्परेचर नोट करना है. कंडक्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन जो आपने लिया है यहाँ पे, उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन लिया आया, कंडक्टेंस 12.38 into 10⁻³ मोल्स और सीमेंट. देन स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द 0.1 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन एट द एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर. कितना टेम्परेचर था, 25 डिग्री. तो 25 डिग्री को करस्पॉन्ड करने वाला ये क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू 0.01288 मोल्स पर सेंटीमीटर. ओके, और सीमेंट. तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ KCl डिवाइडेड बाय द कंडक्टेंस ऑफ KCl. इसका रेशियो लेंगे तो आपको RMT उसका एड्रेस का और एक
अपन ने प्रिंट किया था वो मोबाइल में. Okay, then 1.0 पर सेंटीमीटर. दिस इज द सेल कांस्टेंट. इसकी वैल्यू एक ही रहना चाहिए. ओके, देन मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ द प्रिपेयर्ड एसिडिक एसिड सॉल्यूशन. अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाने. पॉइंट वन से हम 0.05, 0.25, 0.0125 ऐसे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन बनाएंगे. ओके, उनके अच्छा. Wash 3 standard measuring glass with the conductivity water. Pipette out the suggested volume of the 0.1 normal acidic acid solution in the labeled that particular volumetric glass. आया समझ में. अलग अलग वॉल्यूम पिपेट आउट करना है, उसको वाटर से डाइल्यूट करना है. और ये सॉल्यूशंस ये अलग अलग सॉल्यूशंस तैयार होंगे. देन आपको फिर से वही करना है. बीकर में लेना है, कंडक्टिविटी से डिप करना है और कंडक्टेंस मेजर करना है. अभी यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको प्रोवाइड किया है, इनफाइनाइट वैल्यू. ओके, 390.7 सीमेन. ओके, सेल कांस्टेंट 1 है. अभी यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन एसिडिक एसिड का 0.1, 0.05, 0.025, 0.00125. फिर कंडक्टेंस जो आया है उसका वैल्यू यहाँ पे नोट करना है, 0.51 × 10⁻³ ओके. ये जो वैल्यूज है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना है. स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज नथिंग बट K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट ड्यू टू कंडक्टिविटी. ये जो कंडक्टेंस की वैल्यू आई है इसको मल्टीप्लाई करने का सेल कांस्टेंट से, तो आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस मिलेगा. फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज नथिंग बट लैम्डा सी इज इक्वल टू 1000 × K डिवाइडेड बाय C. 1000 मतलब क्या, और फैक्टर दिया है K की वैल्यू बोलो तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय C इज द कंसंट्रेशन. तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यूज मिलेंगे. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा इनटू लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट. ओके, लैम्डा सी ये आपका आया है, लैम्डा इनफाइनाइट यहाँ पे दिया है, उसका रेशियो लेंगे तो आपको ये वैल्यूज मिलेंगे. K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इनटू C डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा. अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करो, C की वैल्यू पुट अप करो तो आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट मिलेगा. उसका मीन ले लो तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं. सिंस द वैल्यू ऑफ द K आर फेयरली कांस्टेंट, देखो सिमिलरली वैल्यूज लगभग देखेंगे. द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज वेरीफाइड. ये थर्ड एक्सपेरिमेंट है. ओके, प्लीज गो थ्रू इट. और कुछ समझ में नहीं आता है तो एक क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करना है. ओके, प्लीज प्रिपेयर द क्वेश्चन बैंक फॉर द वाइवा.